ایک بات اور کہ پھر رنگ تکلم تیرا، ایک بات اور کہ پھر رنگ تکلم تیرا، حرف سادہ کو عنایت کرے اعجاز کا رنگ۔ اس شعر کے ساتھ میں صدارتی کلمات کے لیے پروفیسر عطار وفاقی صاحب کو سے درخواست کرتا ہوں وہ آئیں اور صدارتی کلمات سے سرفراز کریں۔ پروفیسر سمن جین صاحبہ، یونیورسٹی جہلور صاحبہ، ڈاکٹر مشرف علی، افضل مصباحی صاحب، ساتھی اساتذہ، عزیز طلبہ و طالبات، قرۃ العین حیدر پہ بہت ساری باتیں ہو گئی اور اختتامی جو اجلاس ہوتا ہے دراصل اس میں ایک تاثر کا اجلاس ہوتا ہے کہ دن بھر کی جو کارکردگی ہوئی یا جو کچھ گفتگو ہوئی یا جو مقالے پڑھے گئے اس کی نوعیت کیا تھی اور مجموعی طور پر ہم نے کیا حاصل کیا، کیا نئی باتیں ہوئی، کچھ سیکھا یا روایتی انداز میں گفتگو ہوئی۔ شروع میں بھی یعنی افتتاحی اجلاس میں جو خاص طور سے بلرام پانڈے جی کا جو وکتویہ ہوا، جو گفتگو ان کی ہوئی، اور ابھی پروفیسر سمن جین صاحبہ نے مقطع کے طور پر جو گفتگو کی، تو یہ دونوں میں بڑی مماثلت ہے اور خوشی ہوئی کہ شروعات جس طرح سے ہوئی تھی انت بھی اسی طرح، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں کسی بھی بڑی شخصیت کے بارے میں جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک وڈمبنا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فن پارہ، کوئی بھی تخلیقی نگارشات میں سے کوئی بھی ایک تخلیق اگر وہ مشہور ہو جاتی ہے تو ہم سارا زور اسی پہ لگا دیتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ آپ دیکھیے گا تو تان آ کر کے جو ٹوٹتی ہے وہ آگ کے دریا پر ہی ٹوٹتی ہے۔ ہر شخص قرۃ العین حیدر اور آگ کا دریا یہ لازم ملزوم ہے۔ آگ کا دریا مطلب قرۃ العین حیدر یا قرۃ العین حیدر کا مطلب آگ کا دریا۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو اہم تخلیقات ان کی ہوتی ہیں یا فن پارہ جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں چھوٹ جاتا ہے۔ تو آپ صرف ان کے انٹرویوز کو پڑھ کے دیکھیے جو انہوں نے انٹرویو دیے یا فن کے تعلق سے جو گفتگو انہوں نے آرٹ کے بارے میں جو باتیں کی، ترجمے کا ابھی حوالہ ہے یا پھر جو سفرنامہ ہے مختلف جستہ جستہ جو لکھا ہوا ہے، ان سب میں اسی طرح سے ایک طرح سے فنی جواہر موجود ہیں جو آپ کو آگ کی دریا میں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ دو سطح پر جو بڑا فنکار ہوتا ہے، جو بڑا تخلیقار ہوتا ہے، وہ دو سطح پر تجربہ کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی روایتوں کو توڑتا ہے اور ایک نئی روایت گڑھ دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روایتیں جب ٹوٹتی ہیں تو پوری طرح سے مسمار ہو جاتی ہیں، اس پہ اسپائل بھی کرتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا بھی ہے۔ تو قرۃ العین حیدر نے دو سطح پر کام کیا۔ ایک تو جو ہماری روایتیں تھیں، خاص طور سے ناول کی دنیا میں، افسانے کے حوالے سے نہیں کہیں گے، ناول کی دنیا میں جو ہماری روایتیں تھیں اس سے الگ ہٹ کر کے ایک اپنی دنیا بسا دی۔ اور یہ تجربہ صرف فکری سطح پر نہیں تھا بلکہ فن کی سطح پر بھی تھا۔ جو آرٹ جس پہ بات ہم لوگ کرتے ہیں، اور بڑا خوبصورت کبھی یہ لائق احمد کا پیپر ہم نے سنا، دراصل یہ اصل چیز ہے کہ یہ جو آپ ایک طرح سے مفروضہ نہیں بلکہ معروضہ قائم کرتے ہیں، تو دراصل بڑا فنکار یہی ہوتا ہے کہ جب ایک نئی روایت کو گڑھتا ہے، ایک نئی پرمپرا کی شروعات کرتا ہے تو پرانی پرمپرا کو توڑتا ہے، اسے کچھ لیتا بھی ہے اور تب آگے بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں آپ کو بعض چیزیں ایسی لگیں گی کہ پریم چند کے یہاں بھی گفتگو ہوئی ہے، لیکن پھر ایک نئے روپ میں یہ چلا آتا ہے۔ مثال کے طور پر جس ناول کا ذکر بار بار ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ جو
बंगाल का जो इलाका है, और आखिरी शब के हम सफर में आप देखिए कि जिस तरह से पावर में यानी तहरीक चलाने वाले लोग वो पावर के कैसे हथकंडे बन जाते हैं, और फिर आकर के धमक देख लीजिए अब्दुल समद, उसको पढ़ करके कि किस तरह से धमक में जो मशाल लेकर के निकलता है और फिर जाकर वो टूल बन जाता है पावर का। तो अब ये चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी जो परंपरा कायम करता है बड़ा फनकार, बाद की नस्लें किस तरह से उसकी पैरवी करने लगती। तो ये सही कहा गया है कि एक तरह से एक फिक्री सतह पर एक इंस्टीट्यूट का नाम है फिक्री का एक इंस्टीट्यूट है, जो बाद में आकर के बहुत सारे लोगों ने उनकी पैरवी की है। अब आजकल फिक्र और फलसफे की बात, कुछ लोग तो उसका नाम नहीं नोबेल निगार का लूंगा, लेकिन ये दरपय है कि साहब वो नोबेल निगार कम है, फलसफी बहुत बड़ा है। अब लोग ताली बजा रहे हैं, क्या कुरतुलैन हैदर से बड़ा हो जाए? या हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सच बात है। ये ठीक है कि बाद में आने वाले लोग रहेंगे, लेकिन जो मुताला कुरतुलैन हैदर के पास था, जो अमीर मुताला कुरतुलैन हैदर के यहाँ है, जो वसी तनाजुर उनके यहाँ है, जो तहजीब का मुताला उनका है, जो तारीख का मुताला उनका है, आज के जमाने में मौजूदा दौर में हमारे जितने लिखने वाले हैं सब बौने नजर आते हैं। इसमें कोई करने की बात नहीं है। इसलिए अगले जन्म में मुझे बिटिया न कीजो, वो दरअसल ये नहीं है कि मुझे बिटिया मत पैदा करो, यानी खुदा से ये कह रही है कि हमें अगले जन्म में बेटी बना के पैदा नहीं करना। नहीं, वो तो उस लहूलुहान माशरे को एक तरह से नंगा करने की कोशिश कर रही है, जो मर्दसास माशरा है, उसको नंगा करने की कोशिश कर रही है। किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, किस तरह से आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मर्द किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है। दरअसल ये कुरतुलैन हैदर है। तो दरअसल ये जो फेमिनिज्म की बात हम आज कर रहे हैं कि इक्का दुक्का या दो चार नजर आ रही है, तो ये आपको मान लेना होगा कि जो तीन जो हमारी बड़ी राइटर रही, जैसे इसमें चौथाई का नाम आप ले सकते हैं कुरतुलैन हैदर का नाम, या शुरू में आप रशीद जहां का नाम ले सकते हैं। तो ये तीन चार ऐसी खवातीन हैं उर्दू अदब में, जिन्होंने न सिर्फ उर्दू अदब में बल्कि बड़ी बात इत्मीनान से यह बात मैं कह सकता हूं कि 47 से पहले हिंदी में इस तरह उभर करके नहीं आई। बहुत इत्मीनान से यह बात कही जा सकती है कि इन लोगों को रखा जा सकता है कि किस तरह के इन्होंने मूवमेंट चलाया। मैं इसको हिंदी उर्दू के खाने में बात कर नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सही है। मसलन बलराज पांडे ने सुबह में एक बात कही कि साहब इसका हिंदी में जो अनुवाद हो रहा था उसमें शमशेर बहादुर सिंह पेश थे और उन्होंने चीजों को सुधारा और समझा। आपको जानना चाहिए कि जितने बड़े हिंदी के वो कवि हैं, शमशेर बहादुर सिंह उससे कहीं बड़े उर्दू के, लेकिन क्या कहिएगा उर्दू आप उनको पता ही नहीं है कि हमारा शायर है। मैं क्या बताऊंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू में वो काम करते थे। शमशेर बहादुर सिंह उर्दू हिंदी डिक्शनरी लिख रहे थे और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इत्तेफाक से उसी पोस्ट पर मुझे काम करने का वहां सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैंने देखा कि किस तरह से चीजों को सुधार रहे। बड़े मुशायरे में उर्दू के मुशायरे में हर जगह जाते थे, लेकिन उन पर कोई काम नहीं। आप देखिए दुआबा जो उनकी किताब है, आप देखिए उस दुआबा में 17 में 11 जो लेख हैं हिंदी में वो उर्दू पर है। और दिलचस्प बात यह है कि 1944 में जब उर्दू शायरात के बारे में कोई कुछ लिख नहीं रहा था, 43 बल्कि 33 से 34 की बात में बता रहा हूं कि उस वक्त शमशेर बहादुर ने तकरीबन 32 पेज का लेख लिखा था उर्दू शायरात के हवाले से। ये उर्दू वालों को जानना चाहिए कि शमशेर बहादुर कौन है। तो इसी तरह से कुरतुलैन हैदर हो चाहे कोई दूसरे हो, इन सब का जो मामला है इसी तरह से हमें एक तरह से मुताला करना चाहिए। दूसरी बात मैं खास तौर से हम अपने रिसर्च स्कॉलर से ये
को बताना चाहते हैं या उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे नॉवेल का जायजा लेने लगे, कोई जरूरी नहीं। आप किसी एक कैरेक्टर को ले, सबसे बेहतर तरीका यह है कि एक कैरेक्टर को आपने उठा लिया और उस कैरेक्टर पर आपने लिख दिया। मसलन यह है कि आपके गौतम नीलांबर, अगर आपके दरिया का एक कैरेक्टर जो अहम कैरेक्टर है उस पर आपने लिख लिया 1 पेज 2 पेज, या तैयारी आपने पॉइंट्स बना करके कर ली, तो आप एक थीसिस कायम कर लेते। आप हमेशा याद रखिए कि तबालत की कोई 4 पेज का कोई लेख लिख करके लावे, उसमें है क्या ये जानना जरूरी है। कितना लंबा लेख है ये जानना जरूरी है। क्या उसमें डिस्कस किया गया है ये बहुत जरूरी है। जो पॉइंट्स आपने बताए हैं वो या बात यह है कि चंद जबानी से आपने काम लिया है। इल्मी अदबी महफिलों के कुछ तकाजे होते हैं और उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप एक पेज कर करके कोई चीज कायम कर दी, कोई नई बात आपने कह दी, वरना चबाए हुए निवाले, उगले हुए निवाले को फिर चबा दें तो उससे क्या फायदा होगा। उगले हुए निवाले को क्यों चबा? इल्म हमेशा मेहनत से, शॉर्टकट से इल्म आपके पास नहीं आएगा। आप दिल से पढ़िए, किसी एक चैप्टर को पढ़िए और फिर लिखने की कोशिश कीजिए, अपने असातिज़ा को दिखाइए और उसमें आपने क्या कुछ लिखा है ये मेन बात होती है। बहुत ज्यादा लिखना ये बड़ापन की अलामत नहीं है कि एक आदमी 300 किताबों का मुसन्निफ है और उसका कोई नाम भी नहीं जानता है। यह है 40 किताबें उसके ऊपर लिख दी गई लेकिन जानता कोई नहीं। तो इसीलिए आप गालिब बनने की कोशिश कीजिए कि यहाँ का हर साहिब दीवान शायद 4-4 हजार अशार पर मुश्तमल कुलियात लेकर घूम रहा है और गालिब सिर्फ 1500-1400 अशार लिख करके दुनिया पर गालिब हो गया। ये आर्ट, ये असल फनकारी है और ये सीखने का आपको मौका मिलता है। मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत से मकाले बड़े अच्छे और अहम पढ़े गए। असातिज़ा ने खासतौर से जो पढ़ा, हमारे बच्चों में भी 1-2 लोगों ने अच्छा मकाला पढ़ा है। तो हमें देखना चाहिए कि असातिज़ा किस तरह के मकाले पढ़ रहे हैं या उसका डिजाइन करने में उन्होंने कितनी मेहनत लगाई है, जबान किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जबान में किस स्टाइल में लिखा जा रहा है, किस बात को कैसे पढ़ा जा रहा है। ये 2 चीजें आपने सीख ली अगर और मेहनत आप करते रहे तो इन सब इस तरह के सेमिनार का एक बड़ा फायदा यही होता है कि हम सीखते ज्यादा, हम कम सुना दें लेकिन सीखेंगे बहुत ज्यादा। सुबह से शाम तक आप लोग बैठे रहे, इससे आपकी इल्मी और अदबी दिलचस्पी का भी पता चल रहा है। ये भी अंदाजा अब मुझे इत्मीनान हो रहा है कि हमारे जो खासतौर से रिसर्च स्कॉलर एमए के बाद स्टूडेंट दूर के थे वो चले गए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये सीखने की जो लगत आपके अंदर है, ये आग असल यही आग का दरिया है। इस आग को बुझने मत कीजिए। वो आग का दरिया है ना, वो ये इश्क नहीं आसान, पर इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यहां पर ये आग को बुझने नहीं देना है, ये आग जलती रहे, ये कोशिश हमेशा होती रहे। और जहां भी सेमिनार, सिर्फ उर्दू के सेमिनार में नहीं, वही हिंदी का सेमिनार हो तो वहां जरूर जाएंगे। खासतौर से अभी बंगला में सेमिनार, उसमें आप लोग को आना चाहिए, जाना चाहिए, सीखिए। जहां जो कुछ मिल जाए सीखते रहिए। और खास तौर से आप देख लीजिए कि बंटवारे की त्रासदी की बात बार बार आई। बंटवारे की त्रासदी पर कुतुब हैदर ने जो लिखा है और यशपाल ने जो लिखा है, इन दोनों को रख कर आप झूठा, ये दोनों को रख करके आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे, एक बेहतरीन रिसर्च पेपर बन सकता है। सोचिए, वो सोचिए जो दूसरा ना सोचे, एक नए एंगल से सोचने। अदब में यही है। और ताबीर कलाम साहब कह रहे थे साहब तारीख के हवाले से, तारीख जब गूंगी हो जाती है ना तब मालूम है अदीब बोलता है। तारीख जब गूंगी हो जाती है तो अदीब बोलने लगता है, और तारीख जब झूठ बोलने लगे तब अदीब
कॉलर पकड़ता है कि तुम झूठ बोल रहे। और अदब को तारीफ की जरूरत हो चाहे मत हो, लेकिन तारीफ को अदब की जरूरत हो। दुनिया का किसी भी जबान में आपको लिखना होगा तो जबान का इस्तेमाल होगा, अदब का इस्तेमाल होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अदब जो है दरअसल वो सच्चा डॉक्यूमेंट होता है, सच्चा एक दस्तावेज, बिल्कुल सच्ची दस्तावेज उसकी हैसियत होती है। और यही वजह है कि हम अगर सच्चाई की तलाश करते हैं, हम खुतूत तारीख क्यों पढ़ते हैं? हम पूरी तारीख उससे निकालते हैं, उसके खुतूत में पूरा अहद सांस लेता है। अब पूरी तारीख आप 1857 के बाद की जो सूरत हाल, 1857 में जो कुछ गुजरी, आप गालिब के खुतूत को सामने रख करके एक इतिहास बना सकते हैं, एक तारीख मुरतब कर सकते हैं। तो इसलिए कुरतुलैन हैदर को पढ़ने का मतलब ये है कि हम उस तहजीब की बात करते हैं, हम उस तारीख की बात करते हैं जो असली हिंदुस्तान है। इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि अगर धड़कता हुआ हिंदुस्तान का दिल देखना है तो कुरतुलैन हैदर की तख्लीकात से बेहतर और कोई सोच नहीं। मैं अफजल साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, यहाँ के तमाम असातिज़ा को। वो प्रिंसिपल मैडम यहाँ पे बस मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आप तमाम, सुमन जानी साहिबा, आप तो बहुत पुरानी एक तरह से हम लोगों की परिचित हैं। और हिंदी उर्दू के हवाले से एक जमाने में वो जो चल रहा था कैंपस वाला, तो मेरा ख्याल है कि फिर से उसको आप जिंदा कीजिएगा। और उर्दू हिंदी ये अलग कोई जबानें नहीं है, ना हम लोग समझते हैं। मिल करके अफजल साहब उनसे बड़ी, और वो गहलोत साहब को पकड़िए, वो जो एक कल्चर एक तरह से हिंदी उर्दू की कल्चर लेकर के आए हैं, एक बेहतरीन एक हेल्दी माहौल बनाइए। हम सब आपके साथ खड़े हैं और जितना कुछ इसका विकास हो सकता है, तरक्की कर सकता है, आप आदमी नहीं है इसलिए कि कोई टाइम नहीं लगाए हुए, लेकिन आप अकेले लगाए। बहरहाल आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद कभी है कि आइंदा जो सेमिनार अभी जो आपको तजर्बा हुआ, इससे बेहतर सेमिनार होगा और इससे बड़ा होगा। बहुत बहुत